एवरीवन, दिस इज अर्पिता और आज मैं आपको ग्रहणी बता रही हूँ। सो लेट्स बिगिन। ग्रहणी इज द अडोब ऑफ अग्नि एंड मेन फंक्शन इज अन्नस्य ग्रहणात्, होल्डिंग द फूड particles. Hence, it is named as Grahani. It is situated above Nabi, supported, strengthened, and nourished by the Agni. Grahani is the one which retain the undigested food and release the digested food from the left side. If Agni is Dorbala, then release the Pakwa Anna downwards. Hence called Grahani Roga, Grahani Gada और ग्रहणी दोषा। सीधा मतलब ये है कि फूड को डाइजेस्ट करने के बाद ग्रहणी एक साइड से फूड को रिलीज कर देती है। बट अगर अग्नि दौर्बल हो गई है, यानी कि वीक हो गई है अग्नि, तो पक्वा अपक्वा जो अन्न है वो दोनों ही एक साथ ग्रहणी से बाहर हो जाएगा, जिसे हम ग्रहणी दोष कहते हैं। इट इज वन अमंग द अष्ट महागदा व्याधिस। आचार्य चरक डिस्क्राइब्ड ग्रहणी आफ्टर अर्शस, whereas आचार्य सुश्रुत डिस्क्राइब ग्रहणी आफ्टर अतिसार। निरुक्ति देखते हैं। अगण्य अधिष्ठानाम अन्नस्य ग्रहणाद ग्रहणी मत। Again, it is the adobe of the Agni and it holds Anna. निदान, हमेशा आपको निदान 4 फैक्टर्स में ही बताने हैं। आहारज यानी कि जो खाना है उसकी वजह से क्या पॉजिटिव फैक्टर्स है। विहार मीन्स जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से हमको क्या पॉजिटिव फैक्टर है, मानसिक और अदर्स। तो आहार में अतिभोजन, अभोजन, अजीर्ण भोजन, विषमासन। विहारज अतिव्यायाम, अतिव्यय, आतपसेवन, दिवा स्वप्न। मानसिक में भय, शोक, चिंता, क्रोध। अदर्स में मिथ्यायोग, वमन, विरेचन, स्नेहपान। संप्राप्ति देखते हैं। निदान सेवन, निदान सेवन से पित्त प्रदान त्रिदोष प्रकोप। फिर मंदाग्नि, आमदोष फॉर्मेशन, ग्रहणी की दृष्टि। ग्रहणी की दृष्टि होने पे आमा जब उसमें है तो पक्वा जो अपक्वा और पक्वा मला दोनों है, उसकी वजह से मुहुर्बद्धम, मुहुर्द्रव, मला प्रवृत्ति। इसका मतलब समटाइम सॉलिड फीकल मैटर, समटाइम लिक्विड फीकल मैटर विल बी एक्सपेल्ड। दिस इज द ग्रहणी रोगा। संप्राप्ति घटका देखते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। दोष है इसमें है पित्त प्रदान त्रिदोष, दुष्य है रसा, अग्नि है जठरा अग्नि, आम है जाठरा अग्नि, मंद्य जन्य आम, श्रोतस है रस, अन्न पुरीशव, दुष्टि है संग और अति प्रवृत्ति, अधिष्ठान है ग्रहणी और रोग मार्ग है अभ्यंतर। पूर्व रूप देखते हैं गाइस। पूर्व रूपम तू तस्येद तृष्णा आलस्यम बलाशय विदाहु अन्नस्य पाकश्च चिरात कायस्य गौरवम। पूर्व रूप में तृष्णा मीन्स थ्रस्ट, आलस्य मीन्स मेलाइस, balashaya means doorbell, weakness, vidahu means burning sensation, annasya pakascha chirat means it will take more time for food to get digest, kayasya gauravam means heaviness in the body. Then comes rupa, अतिसृष्टम विबद्धम द्रवम तद उपदिश्यते तृष्णा आरोचकम वैरस्यम प्रेषक तमकवान्वितम। अतिसृष्टम मीन्स excessive quantity में fecal matter will be released, expelled. Vibaddham means sometime it will be solid, sometime it will be liquid. Other than that, trishna, thirst, arochak means anorexia, vairasya, distaste, presak means excessive salivation, tamakvanvitam means when darkness comes in front of the eye. Other than that, some more symptoms like suna padakara,
swelling in the hands and legs. Chardanam, vomiting. Jwara, fever. Daha, burning sensation. Bheda. It is classified basically into 4 types: Vata, Pitta, Kapha, Sannipataja. Acharya Madhavkara classified it into 6 types. Again, Vata, Pitta, Kapha, Sannipataja, Sangraha, Ghati Yantra. Vataja Grahini. Patient will expel the feces puna puna, means frequently. Chiradukha means along with difficulty. Shabda means sound will be there. Feces is drava, yani ki liquid. Shushka means sometimes solid. Tanu means thin. Associated with ama or fena means frothy in nature. In Pittaja, the feces will be ajirna, containing ajirna food, as well as color is Neela Peetabha, bluish yellow color, or Peetabha yani yellow in color. Kafaja. The patient expel fragmented feces with undigested and mucus and heavy in nature. Sannipatij will be having mixed symptoms. सभी के जो symptoms हैं वो इसमें होंगे. Sangrahana grahani. In this, Antakujana means there will be gurgling sounds in the abdomen. Alasya will be there. Anorexia. Sadhana means pain will be there. Body pain will be there. Generalized. Kati Vedana, pain in the flank region. And along with this, feces will be drava. Shita means cold. Gana means solid. Snigdha means unctuous in nature, associated with the ama. Bahu means it will be excessive in quantity. Sapichala is slimy in nature, associated with the shabda. And manda vedana. Ghati yantra grani. In this, parshvyo shula, pain in the flank region is there. And gala jala ghati dhwani means sound produced in the abdomen resembling the water clock. और ये कैसी होगी? इनक्योरेबल होगी इन नेचर. साध्य साध्यता. साध्य होती है बालक बच्चों में. कृत साध्य होती है यौवन में, यानी कि एडल्ट्स में. और असाध्य होती है वृद्ध में. चिकित्सा देखते हैं. ग्रहणी दोषा शुड बी ट्रीटेड लाइक अजीर्ण. फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज टू एडमिनिस्टर लंगना ड्रग्स एंड दीपनीय ड्रग्स. उसके बाद ये श्लोक देखिए. लीनम पक्वाशयस्तम वह आप्य आमम श्राव्यम सदीपनेह शरीर अनुगते सामे रसे लंगना पाचनम. इसका मतलब अगर आमा जो है वो आपके पक्वाशय में है तो हमें श्राव्यम मीन्स परगेटिव्स यानी कि पाचना और दीपना दीपना पाचना ड्रग्स देने हैं. और अगर आमा रसा के साथ एसोसिएट होके पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड हो चुका है, पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया है अमाशय की पक्वाशय की जगह, तो फिर हमें लंगना पाचना ट्रीटमेंट देना होगा. पाचना ट्रीटमेंट. तक्र प्रयोग सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रहणी के अंदर. देखिए श्लोक. तक्रम तु ग्रहणी दोषे दीपना ग्राही लागवत विहिता ग्रहणी दोषे सर्वेश स्थान प्रयोज्यते. तक्र क्यों यूज करना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो दीपना है. ग्राही मीन्स कॉन्स्टिपेटिंग यानी कि द्रव जो मल है उसको सॉलिडिफाई करता है. लागव मीन्स लंघना कॉज करता है. इसीलिए तक्र हमेशा हम प्रयोग करते हैं. स्नेहा प्रयोग इम्पॉर्टेंट है ग्रहणी के अंदर. द बेस्ट टू स्टिमुलेट द दौर्बला अग्नि. और द अग्नि स्टिमुलेटेड बाय द स्नेहा कैन नॉट बी पेसिफाइड इवन बाय द गौरव अन्न हैवी. शमना ड्रग्स देखते हैं इसके अंदर. हेमा गर्भ पोटली पंचामृत परपटी ये रस औषधि है.
125 से 250 mg विथ हनी के साथ। अग्निटुंडी वटी, चित्रकादि वटी, जीरकादि वटी आप ले सकते हैं 250 टू 500 mg विद ल्यूकवार्म वाटर के साथ। बिल्वा मज्ज चूर्ण, ईसमगोल चूर्ण, जीरकादि चूर्ण 3 to 6 ग्राम विद ल्यूकवार्म वाटर के साथ। धान्य का आदि क्वाथा तक्र अरिष्टा 20 to 40 ml with water के साथ। Thank you guys. This is it for this video. If you like my video, please like, share, comment on my channel वेदा से आगे, क्योंकि वेदों से हम हैं और उन्हीं से आगे बढ़ सकते हैं। Thank you for your support. This is me signing off.